मेरा तो यही था, क्योंकि मैंने ऑनलाइन कोचिंग किया था। तो ऑनलाइन कोचिंग के फायदे ये होते हैं कि आप कभी भी क्लासेस अटेंड कर सकते हो। तो मेरा मेन यही होता था कि भाई क्लास यानी जब हो सुबह और शाम का आपका खत्म हो जाए पूरा शेड्यूल डेली का, तो आप रात को करिए क्लासेस। तो मैं रात को क्लासेस करता था जितनी हो सके। कैट में मेरा 99.15 है परसेंटाइल। एक्चुअली मुझे दो चीजों ने काफी हेल्प किया। एक तो थोड़ा पास्ट एक्सपीरियंस यूपीएससी का होना, वो थोड़ा हेल्प करता है, क्योंकि आप एक रिगर ऑफ एग्जामिनेशन से गुजर चुका था मैं। तो आपको आइडिया होता है कि आप एग्जामिनेशन, और इनिशियली से लेकर एंड तक मेरे लिए क्वांटिटी सबसे चैलेंजिंग था, क्योंकि एक तो मैं लॉ बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है, आर्ट्स बैकग्राउंड से। और क्योंकि भले ही मैंने स्कूल में पढ़ा था मैथ्स, बट एकदम टच पूरा छूट गया था 8-9 साल से, तो कोई क्वांट से टच ही नहीं था मेरा। तो शुरू से मैंने एक चीज कर रखी थी कि मैं एक अलग से बुकलेट बना के रखता था, जिसमें मैंने यूनिक क्वेश्चंस टाइप के या फिर यूनिक फॉर्मूलाज के एक चार्ट टाइप का बना लिया था टॉपिक वाइज, कि फंक्शन के ये, लॉग्स के ये, ठीक है। उनसे मैंने एक तो फॉर्मूलाज रिवाइज करने के लिए वो एंड में आसान हो जाते हैं। इट्स लाइक द क्वेश्चन वाज, यू वेंट फॉर लॉ, देन यू वेंट फॉर यूपीएससी, नाउ यू आर गोइंग फॉर एमबीए, सो यू आर नॉट क्लियर अबाउट योर गोल्स एंड करियर्स, सो यू नीड टू मैनेज दैट। आपको अपने फंडामेंटल्स पे ध्यान देने की जरूरत है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने की जरूरत है। आप ऑनलाइन हिस्टेरिया पे मत जाओ, पहला तो ये सजेशन है। दूसरा कि मॉक्स को लाइट नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी। कैट में, कैट इज मोस्ट मॉक बेस्ड एग्जाम ऑफ एनी एग्जाम, लाइक मैंने जितने भी दिए। First of all, a huge congratulations on securing your IIT Delhi Convert. थैंक यू सो मच। Share a little bit about your journey so far, your background, school, college, and what were you doing before CAT? So actually, I did my schooling from Chhattisgarh itself. I'm from Chhattisgarh. So I did my schooling from my village in Saraipali and high schooling from Bhilai. After that, I did my graduation in BLLB honors from Hidayatullah National Law University. And after that, I prepared for UPSC. And I was able to clear the prelims examination twice, but wasn't able to clear the further stages. So that's why I pivoted back to management. And I gave CAT examinations in OMET, and this was my first attempt, and I was able to clear it. Okay, what was your personal motivation behind choosing to pursue an MBA and preparing for CAT? Because since you said that you did study law and then UPSC and then you shifted to management, so what was the motivation for this? So I think there's lot of factors behind choosing management. First, law as a thing is like basically law gives you understanding about businesses, and lots of businesses involve compliances where laws comes into being. And my honors were actually corporate law itself, so that helps. So a career in MBA was a natural choice if you want to pivot towards a more dynamic approach from a traditional law or judicial background. So that was a motivation. Also, like having ideas about interdisciplinary views from UPSC law and my schooling, so that helped a lot in MBA. And I think law is a better boost to your career in comparison to look into other fields in the current time. So that's why I went for MBA. Okay, so were you working while preparing for CAT or you took a break and focused solely on the preparation? No, no, no. I was working under a lawyer, so I worked as a junior lawyer when the time I was preparing for CAT. So I was a working professional. So I would love to know how you balance and stayed consistent with your CAT preparation since you were working while preparing for CAT. So actually, ये तो है कि CAT थोड़ा डिफिकल्ट है, और क्योंकि एक टाइम बेस्ड एग्जाम है तो आपको अलग से प्रिपेयर करना ही पड़ता है, और वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स है। तो मेरा तो यही था, क्योंकि मैंने ऑनलाइन कोचिंग किया था। तो ऑनलाइन कोचिंग के फायदे ये होते हैं कि आप कभी भी क्लासेस अटेंड कर सकते हो। तो मेरा मेन यही होता था कि भाई क्लास यानी जब हो सुबह और शाम का आपका खत्म हो जाए पूरा शेड्यूल डेली का, तो आप रात को करिए क्लासेस। तो मैं रात को क्लासेस करता था जितनी हो पाए, और फिर ऑब्वियसली वीकेंड्स में यूटिलाइज कीजिए मैक्सिमम पोटेंशियल पे, तो वो बेस्ट ऑप्शन होता है। From which colleges did you receive calls and which are the ones that you have successfully converted so far? So I received call from MDI, IFT, IM Shillong, and CAP colleges, all the CAP colleges, and SNAP colleges, SCMHRD and SIBM Pune, both. That's all I think I can recall, most of the major colleges. Unconverted? So I have converted IFT, MDI, basically International Business Program, BA program, Business Analytics of MDI. I have converted IIM Raipur, Ranchi, Rohtak, SCMHRD. Yeah, basically this has been my converts. Okay, कितना परसेंटाइल आया है आपका कैट में? कैट में मेरा 99.15 है परसेंटाइल।
ओके, दैट्स ग्रेट। तो ईजी के बारे में आपको कैसे पता चला? आप खुद ही रिसर्च किए थे या फिर कोई रिकमेंड किया था आपको? नहीं, रिकमेंडेशन से ही पता चला था एक्चुअली। मैं जिस कॉलेज से पढ़ा था तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो पहले ईजी से अप्लाई किए हैं, ईजी से किए हैं। एक वन ऑफ माय फ्रेंड्स वेंट टू एनएमआईएमएस आल्सो थ्रू ईजी, तो उनसे मुझे पता चला था। और थोड़ा बहुत मैंने रिव्यूज भी देखा था ऑनलाइन, तो उससे आइडिया था ही। ओके, तो कौन से बैच में आपने ज्वाइन किए थे और कब से आपका क्लासेस स्टार्ट हुआ? मेरा आई थिंक मेरा इवनिंग बैच था, ठीक है। और मैंने क्लासेस स्टार्ट किए थे अप्रैल के आसपास। तो कैट प्रिपरेशन जर्नी में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन तो रहता ही है। इट्स लाइक एन इमोशनल रोलर कोस्टर। कभी कभी बहुत मोटिवेटेड रहते हैं और कभी कभी हम्म। स्पेशली जब मॉक टेस्ट शुरू होता है तब तो डिमोटिवेटेड फील तो होता है, सब कुछ पढ़ लिए सब कर लिए फिर स्कोर क्यों नहीं आ रहे। तो उस टाइम पे वो टफ दिनों में आप कैसे खुद को मोटिवेट करते थे टू कीप गोइंग? देखो, कैट तो है ही कि आप मोटिवेट डिमोटिवेट तो हो गई, लाइफ साइकिल ही है। बट एक्चुअली मुझे दो चीजों ने काफी हेल्प किया। एक तो थोड़ा पास्ट एक्सपीरियंस यूपीएससी का होना, वो थोड़ा हेल्प करता है, क्योंकि आप एक रिगर ऑफ एग्जामिनेशन से गुजर चुका था मैं, तो आपको आइडिया होता है कि आप एग्जामिनेशन। और दूसरा कि कैट एक जैसे कोचिंग वाले इलीट ग्रिड से जो हेल्प थी और कैट से जो हेल्प था, कि मुझे एक हमेशा बिलीव था कि फाउंडेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे टेस्ट सीरीज में आपके मार्क्स तो फ्लक्चुएट होंगे, कोई ऐसे नहीं हो सकता कि सारे टेस्ट सीरीज में वो एकदम आग लगा दे। बट आपका ये रहेगा कि आपको आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आप प्रोग्रेस कर रहे हो कि नहीं, तो वो रहता है। हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, बट आपको अपने आप को स्टेबलाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलता है एक्चुअली। हाँ, ट्रू। तो कैट के तीन सेक्शंस होते हैं, क्वांट, वीआरसी एंड डीआईएलआर। तो कोई एक सेक्शन था जिसमें जो आपको इनिशियली बहुत ज्यादा चैलेंजिंग लगा या फिर टफ लगा? नहीं, इनिशियली से लेके एंड तक मेरे लिए क्वांट ही सबसे चैलेंजिंग था, क्योंकि एक तो मैं लॉ बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है, आर्ट्स बैकग्राउंड से। और क्योंकि भले ही मैंने स्कूल में पढ़ा था मैथ्स, बट एकदम टच पूरा छूट गया था 8-9 साल से, तो कोई क्वांट से टच ही नहीं था मेरा, ठीक है। और ऊपर से क्योंकि आप लॉ जैसे से आते हो, तो आपका थ्योरी यानी आपका राइटिंग होता है, स्लो नॉलेज होती है, स्लो स्पीड होती है, तो फिर क्वांट के हाई पेस एनवायरनमेंट में आना, फिर कैलकुलेशन को ब्रेन में इंटरवायरिंग होना, तो ये बहुत टाइम लगता है। तो क्वांट ही चैलेंजिंग था सबसे ज्यादा। और क्वांट एक रीजन भी था कि मैंने इलीट ग्रेड की तरफ गया था। ओके, तो आप क्वांट प्रैक्टिस कैसे करते थे कि आपका इम्प्रूव हुआ? क्योंकि आप 99.5 अराउंड ऐसा परसेंटाइल है आपका। 99.15 है। हाँ। 99.15 या सॉरी। तो हाँ। क्वांट प्रैक्टिस कैसे किए हैं आप? क्योंकि बहुत ज्यादा स्कोर है वो तो। नहीं, यानी मेरा तो क्वांट में दो फोकस था। पहले कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो, मेजोरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स में फंडामेंटल्स क्लियर हो, फॉर्मूलाज आपके पूरे क्लियर हो। और दूसरा प्रैक्टिस का ये है कि आपको बार बार सेम क्वेश्चंस को रिवाइज करना होता है। तो मेरा यही था कि मैं जितने वीक्स में पढ़ता था उसको वीकेंड्स में रिवाइज करता था, और बाकी फिर टुवर्ड द एंड तो टेस्ट सीरीज होते ही है रिवीजन के लिए। तो आप जब फुल एंड मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किए थे, इनिशियली आपका स्कोर कैसा था? हाई था या लो था? अ, बहुत फ्लक्चुएट हुआ था। स्टार्टिंग में तो काफी फ्लक्चुएट ही होता है, कुछ कुछ में तो बहुत बुरे स्कोर्स थे। बट धीरे धीरे यानी प्रोग्रेस होगा, तो धीरे धीरे प्रोग्रेस हुआ था। तो स्टार्टिंग में स्कोर्स थे अराउंड 40-50 भी गए हैं मेरे स्कोर्स, काफी बुरे तक ओवरऑल। बट धीरे धीरे इंप्रूव हुए थे स्कोर्स आखिर तक पूरे। तो जैसे आपने कहा कि पहले बहुत फ्लक्चुएट करता था और लो ही था अप्रोक्स, तो फिर धीरे धीरे आपकी इम्प्रूव हुआ। आई बिलीव कि ये इम्प्रूवमेंट सिर्फ मॉक टेस्ट एनालिसिस स्ट्रेटेजी के वजह से ही आते हैं। जब तक आप अपने वीक पॉइंट्स ना ढूंढ पाए तो आप इम्प्रूव कैसे करेंगे? तो आपका स्ट्रेटेजी क्या था मॉक टेस्ट एनालिसिस का? नहीं, एक बेसिक प्लान बनाया था मैंने कि मेरा हर ये होता था कि हर 2 दिन में एक मॉक देना है। तो फर्स्ट डे जिस दिन मैंने मॉक दिया, उसके अगले दिन बैठ के मैं एनालिसिस करता था। मेरा स्ट्रैटेजी होता था कि मैं क्वेश्चंस को डिवाइड कर लेता था कि किन क्वेश्चंस को मैं यानी जिनकी मुझे बेसिक आइडिया भी है कि उनको अटेम्प्ट करने का है कि नहीं। तो इफ आई हैव नॉट बीन एबल टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन, सो आई विल सी कि मुझे उसका कुछ नॉलेज भी है कि नहीं। और वैसे क्वेश्चंस जिनको मैं कर सकता था बट मेरी स्पीड स्लो थी या फिर टाइम का प्रॉब्लम हुआ, तो उस बेसिस पे मैं क्वेश्चंस को डिवाइड करता था। और उस बेसिस पे मैं क्वेश्चंस या टॉपिक्स को रिवाइज करता था फिर उसके अगले दिन। कितने सारे फुल एंड मॉक टेस्ट दिए होंगे आप थ्रू आउट योर प्रिपरेशन? 40-50 के आसपास दिए होंगे मैंने। ओके, तो कैट के 30 to 45 डेज पहले का टाइम बहुत क्रूशियल होता है एक स्टूडेंट के लिए। उस टाइम पे इतने सारे क्वांट के फॉर्मूले सब फिंगर टिप्स पे रहना है और फिर जो जो स्ट्रेटजीज बना है सब कुछ दिमाग में रखना होता है। तो उस टाइम पे हम्म। आप रिवीजन कैसे करते थे? क्योंकि मॉक टेस्ट भी तो देना होता है ना थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो मेरा एक ये था कि पहले तो
तो शुरू से मैंने एक चीज कर रखी थी कि मैं एक अलग से बुकलेट बना के रखता था, जिसमें मैंने यूनिक क्वेश्चंस टाइप के या फिर यूनिक फॉर्मूलाज के एक चार्ट टाइप का बना लिया था टॉपिक वाइज, कि फंक्शन के ये, लॉग्स के ये, ठीक है, उनसे मैंने एक तो फॉर्मूलाज रिवाइज करने के लिए वो एंड में आसान हो जाते हैं। दूसरा, क्योंकि इलेज ग्रिड में भी ये होता था कि वो फुल यानी फुल डे सेशंस होते थे उनके, उन सेशंस में बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज होंगे, खासकर पास्ट ईयर क्वेश्चन। कैट में पास्ट ईयर क्वेश्चन बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि रिपीट होते हैं, उनके बेसिस पे बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो उनको मैंने बहुत रिपीट किया। आप जितना रिवीजन करेंगे ऑलरेडी आइडिया हो जाएगा आपको। न्यू नहीं पढ़ना चाहिए पास्ट एक महीने में, बट आपने जो भी पढ़ा उसको रिवाइज कीजिए, पास्ट ईयर पेपर्स रिवाइज कीजिए, उसी में आपका हो जाएगा। तो कैट के अलावा आपने कोई और एग्जाम दिया है? हाँ, ओमेट्स दिए थे मैंने, स्नैप और जैट दिया था, और एनमैट भी ओके। दिया था। ओके, स्नैपचैट एंड इनमैट में कितना स्कोर आया है आपका? एनमैट में मेरा 269 था, और स्नैप में स्कोर्स तो याद नहीं, परसेंटाइल 98.5 था, और जैट में भी 98.5 होगा मेरा परसेंटाइल। Okay, CAT and OMETs are a bit different. The strategy, exam pattern, and little bit the syllabus is also different because in SNAP and NMAT, I guess there are certain clock calendar and then some LR also extra add-on, right? And in that, there's a different section only that is add-on decision making a section. So how did you prepare for OMETs? So I think basically OMATs I did a strategy like you should cover like basics of fundamentals of different topics of Snap and Mat, like LR clocks, calendars, this all in September, October, before your like 30 days of cat kick in. Because in last 30 days of cat, you cannot do anything else. And after cat, the December month is the most crucial one. So like you go full throttle, any it's like your cat is bad or good, it doesn't matter. You start studying the next day and go into everything. For Snap, you will get like 2 weeks or something, Snap and Nmat. And for Zat, you will get 1 month, but it's like you have to do everything once at a time for OMATs. Like December पूरा लगना पड़ेगा, तभी तुम कर सकते हो तीनों के तीनों, वरना कुछ ना कुछ बर्बाद होगा। Okay, so coming back to the interview stage, share how you prepared for your personal interview. So actually, for personal interview, uh, I joined the program with EG itself also. So they connected with few of the seniors. So my focus was like looking at the feedbacks of the mock interview and correcting those. Also going through your undergraduate subjects and brushing up on current affairs was very important. Being from a UPSC background, my like thing was very good on the current affairs, so I brushed up on that, and rest was like work on your feedback and prepare how you like stay confident on all those things. So, can you recall any stress interview, or did you face any stress interview, or any question that you remember that the panelist asked you that were beyond academics, or you felt stuck, or especially they tried to test your stress management actually? Did you face any situation as such, or and how Like, did you handle that situation? so there was very, I think there was a question on like for UPSC gap. The gap years will always become a question in every interview you give if you have a gap year. So there was a question of gap years. What did you do, and why? It's like the question was, you went for law, then you went for UPSC. Now you're going for MBA. So you are not clear about your goals and careers. So you need to manage that. Actually, I was before starting for CAT, like even in CAT days, I knew that this question was gonna come. So I prepared for that and I gave a detailed answer. Like it's not that variant, and law will help in in MBA, and the knowledge of UPSC and the resilience I have built that will help. So there were questions on that and the counter questions on that helped. तो जब आपने फाइनली कन्वर्ट कर लिया कॉलेज, तो वो फीलिंग क्या था? फीलिंग तो बहुत अच्छा था। अब क्या बोल सकते हो कि पहले तो ऐसे लग नहीं रहा था, क्योंकि देखो एक तो ऑनलाइन हिस्टेरिया बहुत ज्यादा है कि भाई आपका गैप ईयर है, ठीक हाँ। है, फिर लॉ बैकग्राउंड, तो प्रॉब्लम्स बहुत होती है, नहीं कन्वर्ट होता है, तो पहले तो एंजाइटी बहुत रहता ही है। और इंटरव्यू फेस खत्म होगा, सिर्फ 15-20 दिन का गैप होता है रिजल्ट में, उसमें रोज लगते रहता है, अरे कब आएगा कब आएगा कब आएगा, तो लग रहा था बहुत दिन तक, डर बहुत हो गया था, तो अच्छा तो लगा था बहुत। What was your overall experience with LXP? काफी अच्छा था, क्योंकि फ्रॉम ए नॉन लाइक बेसिकली नॉन इंजीनियर बैकग्राउंड, जिसका 7 to 8 years का गैप हो गया हो मैथ्स में, काफी अच्छा था मेरा एक्सपीरियंस। स्पेशली विथ हनी सर की वो मैथ्स के या क्वांट के जो सेशंस कराते हैं, लॉन्ग लॉन्ग सेशंस, तो
ऐसे स्टूडेंट्स या जो मेरे जैसे स्टूडेंट्स हो जिनको ऐसा चाहिए कि आपको पूरा फोकस्ड चाहिए टाइम पीरियड, तो वो काफी अच्छा होता था। अगर आप खुद से रिवाइज नहीं भी कर रहे हो तो आपके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, इसका प्रॉब्लम नहीं है। और फिर उनका जो डेडिकेटेड टाइम पैनल है कि गौरव सर जब अपने सेशंस करा रहे हैं, शहजाद सर अपने सेशंस करा रहे हैं, तो वो भी काफी हेल्प किया। तो मेरा तो एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। तो अगर आपको किसी कैट एस्पिरेंट को कुछ सजेशन देना है कि उनको थ्रू आउट द ईयर कैसे फोकसली प्रिपेयर करना चाहिए, लाइक हो सकता है कोई कॉमन मिस्टेक जो उनको अवॉइड करना चाहिए, या फिर कुछ एक चीज जो उनको कंसिस्टेंटली करना चाहिए ताकि उनका स्कोर्स अच्छा हो और उनको भी टॉप बी स्कूल से कॉल्स आए, तो आपका सजेशन क्या होगा? आई थिंक थोड़ा फियरलेस होना बहुत जरूरी है कैट के लिए। ठीक है, अगर आप सिर्फ रेडिट या ऑनलाइन हिस्टेरिया पे चले जाओगे तो आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, अब ये चलता है कि कई स्टूडेंट्स को 99 परसेंटाइल पे कोई कॉल नहीं आएगा, ये भी आप पढ़ोगे, फिर आप पढ़ोगे कि नहीं ये बर्बाद हो गया, इस साल बहुत हार्ड पेपर आया, बहुत आसान पेपर आया। अगर आप इस सब में लग जाओगे तो आपका टाइम बर्बाद होना है। आपको अपने फंडामेंटल्स पे ध्यान देने की जरूरत है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने की जरूरत है। आप ऑनलाइन हिस्टेरिया पे मत जाओ, पहला तो ये सजेशन है। दूसरा कि मॉक्स को लाइट नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी। कैट में, कैट इज मोस्ट मॉक बेस्ड एग्जाम ऑफ एनी एग्जाम, लाइक मैंने जितने भी दिए, कि अगर आप इसमें मॉक्स नहीं दे रहे हो तो आपका वो हाथ और आपका वो टाइम सेटिंग कभी नहीं बैठने वाला। इट्स नॉट लाइक कि आप उस दिन गए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है और मैं सीधा जाके पेपर दे दूंगा 2 घंटे का तो हो जाएगा। ये नहीं होने वाला, इसका पैटर्न काफी डिफिकल्ट हो जाता है। और क्योंकि टाइम बेस्ड एग्जाम है तो आपको बैक हैंड प्रिपरेशन मॉक्स की चाहिए। एटलीस्ट 20-30 मॉक्स तो सबको देने चाहिए। That's such a valuable advice. Your journey is a proof that with the right mindset, planning, and consistency, even the toughest goal can be achieved. Thank you so much for sharing everything so honestly, and the challenges that you faced and the way you overcame them will undoubtedly resonate with many CAT aspirants who may be struggling at any point in their preparation journey. A lot of CAT aspirants is going to take inspiration from your story, like how to prepare and what to do, and what you have suggested. They will try to follow that because rightly said that one should be focused. Mind divert to honge because this is a tough exam. So focus is very important, and one need to trust the process. हार्ड वर्क पुट इन करते जाओ, लास्टली हो जाएगा। हाँ, ये और सबसे बड़ी बात कि सिर्फ कैट नहीं, आपको ये भी देखना चाहिए कि ओमेच भी है। या अगर आप एग्जैक्ट। सिर्फ, इफ यू गिव अप लाइक कि ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, आई नो अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स जिनका कैट अच्छा नहीं गया बट दे वेंट टू एक्सएलआरआई और दे हैव वेंट टू एसआईबीएम पुणे। सो लाइक कीप ऑन गोइंग, दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू एंड दैट्स ओनली थिंग इन योर हैंड। राइटली सेड, कैट ही एंड नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्स है, बहुत सारे कॉलेजेस है। तो चांसेस बहुत है एक ही में स्ट्रेस करके या फिर माइंड को डाइवर्ट करके, इट विल अल्टीमेटली ruin the process. So thank you so much for sharing your amazing journey with us. Once again, a huge congratulations on securing a spot at IFT Delhi. Wishing you all the very best as you start this exciting new chapter. Thank you so much for joining. थैंक यू सो मच।